12 Science Biosecond Nervous Coordination Part 1st. Unicellular organisms have simple body with simple functions in their body. But in multicellular organisms, there are many organs and organ systems. They perform many functions. Thus, these organ systems and different functions, that is life processes, require control and coordination in order to maintain homeostasis. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिंपल होती है और उनके फंक्शंस भी सिंपल होते हैं और सेल्स वो फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं. लेकिन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, उनसे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. और ये ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स अपने ऊपर कंट्रोल और अपने काम में हम आहंगी चाहते हैं ताकि उन बॉडी के अंदर एक साजगार माहौल बना रहे. प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ शो अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म. इसके लिए वो अपने अंदर एक अच्छा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, plants coordinate their activities by chemical signals and animals coordinate their activities by chemical and electrical signals. Plants अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को केमिकल सिग्नल्स यानी हार्मोन्स के ज़रिए कंट्रोल करते हैं. इसी तरीके से एनिमल्स अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ को केमिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए कंट्रोल करते हैं. केमिकल सिग्नल्स इंडोक्राइन सिस्टम से डेवलप होते हैं जो हार्मोन्स के ज़रिए होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नर्व फाइबर्स के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं. इन दिस चैप्टर नाउ वी विल स्टडी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स एंड डिटेल्स ऑफ सिस्टम इन ह्यूमन. नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा. हाइड्रा इज included in the phylum Coelenterata or Cnidaria. The nervous system of Hydra consists of sensory cells, nerve cells, and nerve fibers. The body of Hydra is column-like with number of finger-like structures at the apex of body. These finger-like structures are called as tentacles. The whole body of Coelenterata or Hydra is hollow, that is, it contains a cavity called as coelenteron and it is surrounded by a body wall. This body wall consists of two layers, that is epidermis and gastrodermis. There is a gelatinous material in between these two layers. This structure or this gelatinous substance is called as mesoglea. The nerve cells are present in the mesoglea
and these nerve cells are connected together by the nerve fibers. In this way, two nerve nets are developed inside the mesoglea. One nerve net is connected with the epidermis and other nerve net is connected with gastrodermis. The sensory cells are present on the surface of the body wall. The nerve net, these sensory cells, the sensory cells receive the changes from external environment and from the internal environment also, that is, they receive the changes from inside the body and from outside the body, and they give these messages to the nerve cells, and these nerve cells produce the impulses. These nerve impulses are non-polar, therefore these nerve impulses spread in any direction on the body, thus bringing movement of the body or tentacles. For example, catching of prey during feeding. हाइड्रा का नर्वस सिस्टम 3 पार्ट से मिलकर बनता है: सेंसरी सेल्स, नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। हाइड्रा की बॉडी 2 हिस्सों से मिलकर बनती है: बॉडी कैविटी और बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की 2 लेयर होती है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। ये दोनों के बीच में एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, मेसोग्लिया। इस मेसोग्लिया में नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स एक दूसरे से नर्व फाइबर से कनेक्टेड होते हैं। इस तरीके से ये 2 नर्व नेट बनाते हैं। एक नर्व नेट एपिडर्मिस से जुड़ता है और दूसरा नर्व नेट गैस्ट्रोडर्मिस से जुड़ता है। इसी तरीके से बॉडी वॉल के ऊपर सेंसरी सेल्स स्कैटर्ड होते हैं। ये सेंसरी सेल्स चेंजेस को रिसीव करते हैं, बॉडी के बाहर से भी और बॉडी के अंदर से भी, और ये मैसेजेस नर्व सेल्स को देते हैं। वो नर्व सेल्स एक्टिवेट होते हैं और नर्व इम्पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं। ये नर्व इम्पल्सेस नॉन पोलर होती हैं, यानी ये किसी भी डायरेक्शन में बॉडी वॉल के ऊपर और टेंटेकल्स के ऊपर फैलती हैं। इस तरीके से हाइड्रा की बॉडी में मूवमेंट होती है या उसके टेंटेकल्स में मूवमेंट होती है, और इस तरीके से वो टेंटेकल्स प्रे कैच करते हैं। नर्वस सिस्टम इन प्लैनेरिया और फ्लैटवर्म। प्लैनेरिया इज इंक्लूडेड इन फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थs. Its nervous system consists of a pair of cerebral ganglia, a pair of nerve cords, and number of transverse nerves. There is a inverted U-shaped cerebral ganglia called as brain, which produces, each ganglion produces 9 nerve fibers or branches. Then a pair of nerve cords arise from the brain, and these 2 nerve cords are attached together by a number of transverse nerves.
the brain, nerve cords and transverse nerves form the central nervous system. Then number of lateral branches arise from the nerve cord. These lateral branches of nerves form peripheral nervous system of planaria. प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन, नर्व कॉर्ड और ट्रांसवर्स नर्व से बनता है। ब्रेन हेड रीजन में होता है जो दो गैंग्लियन से मिलकर बनता है। हर गैंग्लियन से नर्व की 9 ब्रांचेज निकलती हैं और ब्रेन से 2 नर्व कॉर्ड निकलती हैं जो लेंथ वाइज होती हैं बॉडी में, और इनसे ये दोनों नर्व कॉर्ड एक दूसरे से जुड़ती हैं ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स के ज़रिए। इसी तरीके से नर्व कॉर्ड के लेटरल साइड से भी नर्व फाइबर्स निकलते हैं। ये नर्व फाइबर बनाते हैं ऑटोनोमस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस तरीके से प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम 2 पार्ट से बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।